پاک کلام میں سے اپنے لیے مقدس متی رسول کی انجیل اور اس کا 18واں باب اور اس کی 21ویں آیت سے باب کی آخر تک تلاوت کریں گے۔ خداوند کے پاک کلام میں سے مقدس متی کی انجیل اور اس کا 18واں باب اور اس کی 21ویں آیت سے باب کی آخر تک 35ویں آیت تک۔ عزیزو، ہم خداوند یسوع مسیح کے الفاظ اور ان کے انجیلی بیان کو اپنے لیے پڑھتے ہیں۔ اس وقت پطرس نے پاس آ کر اس سے کہا، اے خداوند، اگر میرا بھائی میرا گناہ کرتا رہے تو میں کتنی دفعہ اسے معاف کروں؟ کیا 7 بار؟ یسوع نے اس سے کہا، میں تجھ سے یہ نہیں کہتا کہ 7 بار، بلکہ 7 دفعہ کے 70 بار تک۔ بس آسمان کی بادشاہی اس بادشاہ کی مانند ہے جس نے اپنے نوکروں سے حساب لینا چاہا، اور جب حساب لینے لگا تو اس کے سامنے قرض دار حاضر کیا گیا جس پر اس کے 10,000 توڑے آتے تھے، مگر چونکہ اس کے پاس ادا کرنے کو کچھ نہ تھا، اس لیے اس کے مالک نے حکم دیا کہ یہ اور اس کی بیوی بچے اور جو کچھ اس کا ایسا بیچا جائے اور قرض وصول کر لیا جائے۔ پس نوکر نے گر کر اسے سجدہ کیا اور کہا، اے خداوند، مجھے مہلت دے، میں تیرا سارا قرض ادا کروں گا۔ اس نوکر کے مالک نے ترس کھا کر اسے چھوڑ دیا اور اس کا قرض بخش دیا۔ جب وہ نوکر باہر نکلا تو اس کے ہم خدمتوں میں سے ایک اس کو ملا جس پر اس کے 100 دینار آتے تھے۔ اس نے اس کو پکڑ کر اس کا گلا گھونٹا اور کہا، جو میرا آتا ہے ادا کر دے۔ پس اس کے ہم خدمت نے اس کے سامنے گر کر اس کی منت کی اور کہا، مجھے مہلت دے، میں تجھے ادا کر دوں گا۔ اس نے مانا بلکہ جب اسے قید میں ڈال دیا جب تک قرض ادا نہ کرے قید رہے۔ پس اس کے ہم خدمت کے حال دے کر بہت غمگین ہوئے اور اگر اپنے مالک کو سب کچھ جو ہوا تھا سنا دیا۔ اس پر اس کے مالک نے اس کو پاس بلا کر اسے کہا، اے شریر نوکر، میں نے وہ سارا قرض تجھے اس لیے بخش دیا کہ تو نے میری منت کی تھی۔ کیا تجھے لازم نہ تھا کہ جیسا میں نے تجھ پر رحم کیا تو بھی اپنے ہم خدمت پر رحم کرتا؟ اور اس کے مالک نے خفا ہو کر اس کو جلادوں کے حوالے کیا کہ جب تک تمام قرض ادا نہ کر دے قید رہے۔ میرا آسمانی باپ بھی تمہارے ساتھ اسی طرح کرے گا، اور اگر تم میں سے ہر ایک اپنے بھائی کو دل سے معاف نہ کرے۔ عزیزو، ہم اسی حصے کو اپنے لیے انگریزی زبان میں بھی تلاوت کریں گے۔ The Gospel of Matthew, chapter 18, verses 21 to 35. Then Peter came up and said to him, Lord, how often will my brother sin against me, and I forgive him? As many as 7 times? Jesus said to him, I don't say to you 7 times, but 77 times. Therefore the kingdom of heaven may be compared to a king who wished to settle accounts with his servants. When he began to settle, one was brought to him who owed him 10,000 talents. And since he could not pay, his master ordered him to be sold, with his wife and children and all that he had, and payment be made. So the servant fell on his knees, imploring him, having patience with me, and I will pay you everything. And out of pity for him, the master of that servant released him and forgave him the debt. But when that same servant went out, he found one of his fellow servants who owed him 100 denarii. And seizing him, he began to choke him, saying, pay what you owe.
So his fellow servant fell down and pleaded with him, "Have a patience with me, and I will pay you." He refused and went and put him in a prison until he should pay the debt. When his fellow servants saw that had taken place, they were greatly distressed, and they went and reported to their master all that had taken place. Then his master summoned him and said to him, "You wicked servant, I forgive you all that debt because you pleaded with me. And should not you have had mercy on your fellow servant as I had mercy on you?" And in anger his master delivered him to the jailers until he should pay all his debt. So also my heavenly Father will do to every one of you, if you do not forgive your brother from your hearts. This is the word of the Lord. Amen. आइए हम अपने सर खुदावंद के हुजूर झुकाएं और दुआ करें। इन लम्हों की जिसमें हम खुदा के कलाम को सीखें, खुदा के लोगों के लिए जो खुदा के घर में, भाई जेम्स के लिए, उसके खानदान के लिए जो ड्राइव करके आ रहे हैं, उनके सफर के लिए खुदा से दुआ करें। बहन शैली के लिए दुआ करेंगे और उसकी सारी बीमारी और रोग से शिफा देंगे। हम अर्शद के लिए, उसके खानदान के लिए दुआ करेंगे। इसका बाप खुदावंद में सो गया है ताकि खुदावंद उस खानदान को तसल्ली दे। और हम दुआ करेंगे कि उनकी जो आखिरी रसूमात हैं, खुदावंद तमाम इंतजामात को अपने इलाही खजाने से ज़रूरतों को पूरा करे और इंतजामात तकमील को पहुँचे। हम खुदावंद के हजूर दुआ करेंगे कि खुदावंद इस कलाम को हमारे लिए बरकत का बाइस बनाए। और हम दुआ करेंगे कि रोज़ बरोज़ हम ईमान में, यकानियत में और सुलह में रहें। और हम अपने इस मुल्क के लिए, जब हमारा बाई चॉइस मुल्क है, सलामती की दुआ करें। और कल इसकी आज़ादी का दिन है, और अब चूँकि ये हमारा वक्त है और आज़ादी है, हम उसके लिए खुदा का शुक्र करें। और हम अपने आबाई वक्त पाकिस्तान की सलामती की दुआ करें और दुनिया में फैले हुए ईमानदारों को खुदा के साथ मैं फ्लैश करूँगा बहन अल्फिका से कि वो दुआ में हमारी रहनुमाई करें। बहन अल्फिका। आसमान और ज़मीन के मालिक, अपने सबके मालिक, तेरा तहे दिल से शुक्रगुजार है खुदावंद कि तू इस वक्त हमें यहाँ पे लेके आया और इस मुल्क में लाया। खुदावंद तेरा शुक्र करते हैं, तेरी बरकत के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं। खुदावंद जबकि तू इस मुल्क में हमको लेके आया है, खुदावंद हमें अपनी गवाही के लिए इस्तेमाल करना और अपनी राहों पे चलना सिखाना, हमें अपने कदमों में जगह देना। जिंदा और शनाइबा इस घर के लिए तेरा शुक्र करती हूँ खुदावंद, जिस घर में आके हमें सुकून और नजात और बरकत मिलती है खुदावंद। इस अपने घर को अपने लोगों से भर दे खुदावंद। तेरे लिए शुक्रगुजार है खुदावंद। तू हमारी इल्तिजा को सुनना जिंदा और जलाली बात, तू हमारी इल्तिजाओं को सुनता है, तू मोज़ात का खुदा है खुदावंद। तूने बहुत से मोज़े किए हैं खुदावंद। इस वक्त अपनी इस बंदी की फरियाद को सुन और अपने घर को अपने लोगों से भर दे खुदावंद। इस घर में ऐसा कोई कदम ना आए जो तुझे नापसंद हो खुदावंद। इस हमारी इस दुआओं को सुन खुदावंद, और हमें यकीन है कि तू हमारी दुआओं को सुनता है खुदावंद। तेरा कान हमेशा हमारी बातों और इल्तिजाओं पर लगा रहता है खुदावंद। तू जानता है कि हम बहुत गुनाहगार हैं, हम बहुत नाताकतवार हैं खुदावंद। हम शैतान के हमले में आ जाते हैं खुदावंद, उसके चुंगल में फंस जाते हैं खुदावंद। लेकिन तू प्यारा बाप है, तू हमारी फिक्र करता है और हमें निकाल लेता है खुदावंद। शैतान के सारे हरकों से हमें छुड़ा लेता है खुदावंद। तेरा शुक्र करते हैं खुदावंद कल की आज़ादी के दिन के लिए खुदावंद। इस मुल्क को खुदावंद अपनी बरकत देना खुदावंद, और जो यहाँ पे शैतानी काम हो रहे हैं खुदावंद उनको दूर करना खुदावंद। इस मुल्क के साथ होना, इस मुल्क के चलाने वालों के साथ होना खुदावंद।
को बरकत देना खुदावंदा, हमारे बच्चों के साथ रहना खुदावंदा, हमारे बच्चों की जिंदगियों को बदल खुदावंदा। और सबकी फैमिली के लिए दुआ करती हूँ खुदावंदा, अपने बंदे को और ज्यादा कसरत से इस्तेमाल कर खुदावंदा, ताकि वो तेरी भूली भटकी भेड़ों को खुदावंदा तेरे करीब ला सके खुदावंदा, और निजात दे सके खुदावंदा। निजात का सरचश्मा तू ही है खुदावंदा। इस वक्त मैं भाई अरशद के लिए दुआ करती हूँ, उनकी फैमिली के लिए दुआ करती हूँ खुदावंदा, लेकिन तू जानता है, तूने दिया तूने लिया, तेरा नाम मुबारक हो खुदावंदा, लेकिन तूने तसल्ली देना खुदावंदा, क्योंकि तू तसल्ली का सरचश्मा है जिंदा और जलाली बाप। तो उनकी फैमिली को ढेर सारी तसल्ली देना खुदावंदा, और उनकी कमी को पूरा करना खुदावंदा, जिनके तूने वारिस को अपने पास बुला लिया है खुदावंदा, और उनके कफन दफन को खुदावंदा तेरे हाथों में देती हूँ खुदावंदा। तो अपने इलाही खजाने में से सारी ज़रूरियात को पूरा करना, और सब कुछ खुदावंदा बखूबी तू उसको पूरा करना खुदावंदा, जिंदा और जलाली बाप। इस वक्त और सब कलाम सुनाने को है खुदावंदा, तेरा जिंदगी बख्श कलाम सुनने को हम तैयार है खुदावंदा, और हमारे अक्लों को खोल, हमारे दिलों को खोल, हमारे ज़हनों को खोल खुदावंदा, ताकि हम इस कलाम को अपने दिल में रख सके खुदावंदा, ताकि जब ये कलाम हमारे दिलों में आ जाए तो हम गुनाह से बचे रहते हैं खुदावंदा। हमें अपने कलाम की भूख देना खुदावंदा। तेरा शुक्र करते हैं खुदावंदा कि तूने हम गुनाहगारों को अपने कदमों में आने की जगह दी जिंदा और जलाली बाप। तेरा शुक्र हो खुदावंदा, तेरे खुले आसमान के लिए खुदावंदा तेरा शुक्र करती हूँ जिंदा और जलाली बाप। इस वक्त और सबके साथ होना खुदावंदा, उनके मुंह में खुदावंदा उनकी जुबान न हो बल्कि तेरे अल्फाज हो खुदावंदा, उसको बरकत देना खुदावंदा। जिंदा बाप मेरी इस दुआ को सुन खुदावंदा, जितने बीमार है खुदावंदा सबको तेरे हाथों में देती हूँ खुदावंदा। तू शिफा देने वाला है, तेरे मार खाने से हमने शिफा पाई खुदावंदा, तेरे लहू में शिफा है खुदावंदा। एक एक बीमार के साथ हो खुदावंदा, अपनी शिफा देना खुदावंदा, अपना शिफा वाला हाथ हाथ रखना खुदावंदा। मेरी इस दुआ को सुन और कबूल कर, मांगती हूँ तेरे प्यारे बेटे यीशु मसीह के वसीले से, आमीन। यीशु मसीह के बाबरकत नाम में आप सबकी खिदमत में सलाम अर्ज करता। हम खुदावंद का शुक्र और उसकी तारीफ करते हैं, वो हमें अपनी बारगाहों में आने देता। और बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि वो लोग मुबारक हैं जो खुदावंद के फाटकों का इंतजार करते हैं और जो उसकी चौखटों पर ठहरे रहते हैं। अजीजों, हम आज खुदावंद के कलाम में से सीखने के लिए आए। हम खुदा के कलाम से अपने आप को आसूदा करने के लिए आए। हम सेटिस्फैक्शन के लिए खुदावंद की हजूरी में हैं, क्योंकि बाइबल मुकद्दस में मसीह खुदावंद ने फरमाया है कि इंसान सिर्फ रोटी ही से जीता न रहेगा, बल्कि खुदा के कलाम के वसीले से। सो गोया खुदा का कलाम हमारी रूहानी ग़िज़ा है, हमारी रूहानी डाइट है, जिसको हम हासिल करने के लिए आए। अजीजों, हम गुज़श्ता हफ्तों से खुदा के कलाम में से जो कुछ सीखते हैं वो मुबारक वादियों के बारे में है, जो कि मसीह खुदावंद का पहाड़ी वास, जिसे हम इंग्लिश में सरमन ऑन द माउंट कहते हैं, उसका आगाज उन्हीं मुबारक वादियों से होता है। और हम मुबारक वादियां क्यों कहते हैं उसे? आप जब उस हिस्से को पढ़ते हैं तो हर आयत का आगाज मुबारक से होता है। और अगर हम इंग्लिश में उसे देखते हैं तो लफ्ज ब्लेस्ड से जो है वो शुरू होता है। और अगर हम ग्रीक में देखेंगे तो ग्रीक में जो लफ्ज मुबारकबादी के लिए या ब्लेसिंग के लिए इस्तेमाल हुआ है वो है मुकालियत। सो हम खुदा के कलाम में से इस बात को सीखते हैं कि कौन शख्स मुबारक है, कौन शख्स है जिस पर खुदा की निगाह है।
वो कौन शख्स है जिसे खुदा ने अपनी बरकतों से मालामाल किया है। मैंने इससे पहले 4 सरमन आपके सामने पेश किए हैं मुबारकबादियों के हवाले से, और आज ये हमारा 5वां सरमन होगा, और इसमें हम मत्ती की इंजील और उसका 5वां बाब और उसकी 7वीं आयत पर गौर करेंगे, जहां लिखा है मुबारक है वो जो रहम दिल हैं क्योंकि उन पर रहम किया जाएगा। इंग्लिश ट्रांसलेशन में लिखा है Blessed are the merciful for they shall receive mercy। और हम खुदावंद के कलाम में से आज जब इन मुबारकबादियों पर गौर करते हैं, और इन मुबारकबादियों को बेआटिट्यूड्स भी कहा जाता है। All the beatitudes describe the character of the Christian man। इन तमाम मुबारकबादियों को जब आप देखते हैं, इन तमाम बेआटिट्यूड्स को जब आप देखते हैं, तो ये एक मसीही का किरदार, यानी एक मसीही का जो कैरेक्टर है उसको बयान करती है। और इसीलिए आज हमारे इस पैगाम का जो टॉपिक होगा, जो अन्वान होगा, और वो इसी आयत की रोशनी में होगा, क्रिश्चियन कंडक्ट और बिहेवियर। यानी क्रिश्चियन बिहेवियर क्या है, क्रिश्चियन का रवैया जो है वो क्या होना चाहिए, एक मसीही का रवैया क्या होना चाहिए। जब हम क्रिश्चियन मैन की बात करते हैं तो कौन है जो मसीही मर्द है या औरत है। हम खुदा के कलाम में से आज इस बात को सीखेंगे। लिखा है मुबारक है वो जो रहम दिल है, यानी वो शख्स जो है मुबारक है, और लिखा है the man who possess divine and divinely given character, यानी वो शख्स जो है वो मुबारक है, वो शख्स जो है वो मसीह का पैरोकार है, वो मसीह का शागिर्द है। He is a disciple of Jesus Christ, जिसके बारे में लिखा है कि उसको अल्लाही किरदार जो है दिया गया है, उसे एक अल्लाही कैरेक्टर जो है वो दिया गया है, और डिवाइनली गिवन यानी एक अल्लाही कैरेक्टर जो है उसके सुपुर्द किया है, और वो उसको पोजेस करता है, वो उसकी मलकियत है। और हम ये बात भी सीखते हैं कि जब हम बेआटिट्यूड्स की बात करते हैं, मुबारकबादियों की बात करते हैं, तो हम ये बात सीखते हैं he is instructed to live his life according to Christian teaching। यानी ये जो मसीही किरदार की बात है, और जब मसीह खुदावंद ने सिखाया है कि एक मसीही ने जिंदगी जो है वो किस तरह इस जमीन पर गुजारनी है, तो हम सीखते हैं कि इनमें इंस्ट्रक्शन दी गई है, इनमें हदायत जो है वो दी गई हैं, इनमें सिखाया गया है कि एक मसीही ने मसीह खुदावंद की तालीम की रोशनी में अपनी जिंदगी जो है वो कैसे गुजारनी है। अज़ीज़ों, हम यहां इस बात को भी सीखते हैं कि जो पहली 3 बेआटिट्यूड्स हैं या मुबारकबादियां हैं, all 3 beatitudes teaches us how to stand in the presence of God as a sinner। यानी जो पहली मुबारकबादी है वो हमें क्या सिखाती है, teaches us how we stand in the presence of God as a sinner। हम क्या हैं? बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि अगर कोई ये कहता है कि मैं गुनाहगार नहीं हूं, वो अपने आप को फरेब देता है। We are sinners, but by the grace of God our sin washed away। खुदा के फजल से हमारे गुनाह क्या हो गए हैं। लेकिन जब हम खुदा की प्रेजेंस में आते हैं, जब हम खुदा की हजूरी में आते हैं, तो फिर ये कि हमने कैसे उसके सामने खड़े होना है। गुनाह कहां है? बात लोग कहते हैं गुनाह हमारी नेचर में है, the sins in our nature। लेकिन मैं ये कहता हूं ये नेचर में नहीं है, उससे भी एक लफ्ज पावरफुल है, ये हमारी सरिश्त में है। इंग्लिश में कहते हैं इंस्टिंक्ट। तो वहां गुनाह है, और हम गुनाह नहीं अगर करते तो इसका मतलब ये नहीं कि हम रास्तबाज हैं। हम गुनाह इसलिए नहीं करते, हम पर खुदा का फजल है, और खुदा के फजल ने उन गुनाहों को प्रेस करके रखा हुआ है।
हालेलुया। और जैसे आप थोड़ा सा उसे रिलीज करेंगे तो यूं जाएगा। और हम आज खुदावंद के कलाम में से सीखते हैं कि ये हमें सिखाती है कि हमें एक गुनहगार होने के नाते खुदा के हुजूर इस तरह से खड़े होना है, घमंड के साथ नहीं, तकब्बर के साथ नहीं, गुरूर के साथ नहीं, बड़ेपन के साथ नहीं। मसीह खुदा ने कहा दो शख्स दुआ कर रहे थे, एक महसूल लेने वाला और एक फरीसी। फरीसी यहूदियों में बहुत बड़ा कबीला था। किस बात से कि वो जितने भी आप सरदार काहिन जो है उनको देखेंगे वो फरीसी कबीले से। इसीलिए पौलुस रसूल कहता है कि अगर मैं करूं तो मैं फरीसियों का क्या हूं, फरीसी हूं। और वो जब दुआ कर रहे हैं, फरीसी की दुआ क्या थी, इस महसूल लेने वाले की तरह नहीं। हफ्ते में 5 बार रोजा रखता हूं, दायित्व भी देता हूं, खराज भी करता हूं। और जो इस तरफ था वो क्या कह रहा था, अरे बाप मैं अपने आप को इस काबिल नहीं समझता कि अपनी आंखें तेरे आसमान की तरफ उठाऊं, क्योंकि मैं गुनहगार हूं। मसीह खुदा ने कहा कौन रात पास ठहर कर अपने घर गया। मसीह खुदा ने कहा जो महसूल लेने वाला। और हम यह सीखते हैं जब हम खुदावंद की हुजूरी में आए तो हमें कैसे आना है, स्पिरिचुअली बैकट्रैक्ट कहते हैं जिसको, जिसका क्या हो गया उर्दू में हम कहते हैं इसका दवारिया हो गया, इसके पास जो है वो कुछ नहीं। जब हम खुदा के हुजूर आए तो अपने दिलों को क्या करके खाली करके आए, नॉट इवन अ स्पिरिचुअल प्राइड। स्पिरिचुअल प्राइड के साथ भी नहीं। बात दफा लोग स्पिरिचुअल प्राइड के साथ खुदा के हुजूर में आते हैं तो उसके सामने हमारी प्राइड क्या होगी, कुछ भी नहीं। उसके सामने हमारी कोई प्राइड नहीं है। हमारे पास जो कुछ भी है उसका दिया हुआ है। और हम यह खुदावंद के कलाम में से आज ये बात सीखते हैं। मसीह खुदावंद ने इसके बारे में हमें ये सिखाया है कि जब हम उसके हुजूर आएंगे तो हमें किस तरह से आना है, सॉरी फॉर सिंस, गुनाहों का इकरार करते हुए और गुनाहों के लिए पछतावे के साथ। किसके साथ, गुनाहों के इकरार और पछतावे के साथ। लोग खुदा की हुजूरी में दाखिल आते हैं तो होते हैं but they not confess their sins. They enter in the house of the Lord without confession. और वो खुदा के घर में जब आते हैं, खुदा उनकी हुजूरी में जो है वो आते हैं, they are not sorry for their sins. वो अपने गुनाहों पर नादम और पशेमान नहीं होते। और खुदा का कलाम, उसी खुदा की तालीम हमें ये सिखाती है कि हम जो है वो पछतावे के साथ खुदा की हुजूरी में दाखिल हो, and meekly humble। हमने क्या है, meekly humble, हलीमी और फरोतनी और संजीदगी के साथ खुदा उनके घर में आए। और एक दफा मैंने फिलाडेल्फिया में ये कहा कि when we enter the house of the Lord, हमारी गर्दनें जो है वो तनी हुई होती है। हमें मालूम नहीं है कि हम किसकी हुजूरी में जा रहे हैं। मैंने कहा अगर आप इस रवैये के साथ आते हैं तो then this message is for you। अजीजों, हम खुदावंद के कलाम में से आगे बात सीखते हैं कि हम इंतहाई हलीमी के साथ, इंतहाई फरोख्ती के साथ, इंतहाई संजीदगी के साथ खुदा की बारगाह में क्या हो, दाखिल हो। खुदा के कलाम में लिखा है कि ना सिर्फ इस दरवाजे से बल्कि जब तू अपने घर से चलता है तो हलीमी के साथ अपने कदम बढ़ा, तू शर्मा होने के लिए जा रहा है, तू खुदा की आवाज को सुनने के लिए जा रहा है। अजीजों, हम यहां खुदा के कलाम में से ये बात सीखते हैं कि जब हम चौथी मुबारकबादी का जिक्र कर रहे थे, द फोर्थ बेटिट्यूड, तो उसमें हम ये बात जो है वो अपने सीखते जब मसीह खुदा ने कहा मुबारक है वो जो रास्तबाजी के भूखे और प्यासे हैं क्योंकि वो आसूदा किए जाएंगे। मसीह खुदावंद ने इसमें वादा किया है। और वो वादा क्या है, मसीह खुदावंद ने जो वादा किया है इस मुबारकबादी में, वह है कंटेन द प्रॉमिस ऑफ गॉड्स प्रोविजन ऑफ राइटियसनेस। खुदा की मर्जी, प्रोविजन खुदा की क्या है, हम क्या बने, रास्तबाज बने। क्योंकि अगर हम रास्तबाज नहीं बनेंगे
अगर हम अपने आप को साफ नहीं करेंगे और अगर हमारे अंदर ये ख्वाहिश नहीं होगी कि यीशु का खून हमें धोए और पाक करे और साफ करे, तो मसीह का वादा हमारी जिंदगी में पूरा नहीं होगा। क्योंकि उसने क्या कहा है, मुबारक वो हैं जो रास्तबाजी के भूखे और प्यासे हैं। बाज दफान ये कहते हैं कि मसीह ने सलीब पर अपनी जान देकर हमारे गुनाहों का कफारा दे दिया है, उसके खून से हम धुल गए हैं। तो क्या कभी हमारे अंदर ये जस्तजू हुई है, हमारी ये ख्वाहिश हुई है, या हम इस के पीछे जो है वो गए हैं कि हम इसे तलाश करें? मसीह ने कहा मुबारक है वो जो रास्तबाजी के भूखे और प्यासे हैं। जिनके अंदर भूख है, जिनके अंदर प्यास है, वो मुबारक है, क्या वो सुंदर किए जाएंगे, उन्हें सेटिस्फैक्शन मिलेगी, उनको नहीं जो पहले पहले। मैंने एक दफा अपने एक बड़े प्यारे भाई को कहा कि क्या हाल है, फोन किया, कहते नहीं मैं यीशु की डूबिया। यानी कभी कभी हम अपनी जबान से लफ्ज ऐसे निकालते हैं क्योंकि जब हम खुदा के कलाम को सीखने वाले का मुबारक है वो जो रास्तबाजी के भूखे और प्यासे, जो हमेशा भूखे और प्यासे रहते हैं। यहां भूख और प्यास खत्म हो जाने की बात नहीं, ये तो हर रोज जारी रहनी चाहिए, हर सुबह हर शाम ये जारी रहनी चाहिए और हमारे हाथ उसकी हुजूरी में उठनी चाहिए। आए खुदावंद अपनी पाक हुजूरी से, अपनी पाकीज़गी से हमें क्या कर आसूदा कर, क्योंकि हम हर रोज क्या होते हैं। मसीह खुदावंद ने पतरस को क्या कहा था? जब पतरस ने कहा ना, मसीह खुदावंद ने कहा मैं तेरे पाँव धोऊं, उसने कहा खुदावंद के हरगिज़ नहीं होने का। मसीह खुदावंद ने कहा कि अगर मैं तेरे पाँव नहीं धोऊंगा तो फिर तेरा मुझ में कोई हिस्सा नहीं। अभी देख, मसीह खुदावंद ने कहा कि जो एक बार नहा चुका है बार बार नहाने की जरूरत है नहीं, सिर्फ पाँव ही धोने की जरूरत है। हम हर रोज आलूदगी में जिंदगी गुजारते हैं अपने मुआशरे में, अपने इर्द गिर्द, जिससे साफ होने की हमें क्या है जरूरत है। अजीजों, हम यहाँ खुदावंद के कलाम में से सीखते हैं कि जब हम चौथी मुबारकबादी की बात करते हैं और उसके बाद जो रिमेनिंग बेटिट्यूड्स है, डिस्क्राइब द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अ क्रिश्चियन कैरेक्टर, वो हमें सिखाती है कि हमें किस तरह हमारा जो मसीही किरदार है उसको क्या करना है, हर रोज ट्रांसफॉर्म करना है, हर रोज हमें तब्दील करना है, जिसे हम रिजनरेशन भी हम कहते हैं, हम सैंक्टिफिकेशन भी जो है वो कहते हैं। हम किस दौर में गुजर रहे हैं? मैं और आप अगर हम थियोलॉजिकली देखें तो हम किस दौर में से जो है वो गुजर रहे हैं? हमारी जस्टिफिकेशन हो चुकी है, यानी हमारी निजात का प्रोसेस जो है वो क्या हो चुका है, मुकम्मल हो चुका है। एंड नाउ वी आर द टाइम ऑफ सैंक्टिफिकेशन। हमें हर रोज जो है पाकीज़गी की जरूरत है, और इसके बाद जो आने वाला है देन द ग्लोरिफिकेशन, जस्टिफिकेशन, सैंक्टिफिकेशन एंड देन ग्लोरिफिकेशन। तो ग्लोरिफिकेशन कब होगी? जब मसीह खुदावंद आसमान के बादलों के साथ आएगा, नरसिंगा फूंका जाएगा, जो मसीह में सो गए हैं वो जी उठेंगे। अगर हम इस जमीन पर हुए तो हम तब्दील हो जाएंगे और फिर हवा में उड़कर मसीह खुदावंद का इस्तकबाल करेंगे। और हम यहाँ खुदावंद के कलाम से सीखते हैं ट्रांसफॉर्मेशन की जरूरत है, सैंक्टिफिकेशन की जो है वो जरूरत है। Who is a Christian? मसीही कौन है? अगर कोई, या मैं अपने आप से सवाल करूं, या आप जो है अपने आप से सवाल करें, किसी से सवाल करें कि मसीही कौन है, तो हमारा जवाब क्या होगा? क्या जवाब होगा? कि आप मसीही हैं। क्यों मसीही हो? मैंने कभी मैं मसीही खानदान में क्या हुआ था, पैदा हुआ, और मुझ पर जो है मसीही होने की मोहर जो है वो। ये बात सही है कि अगर हम मसीही खानदान में पैदा हुए तो हम मसीही हो गए हैं? नहीं, हम मसीही नहीं हुए हैं। मसीही हम उस वक्त होते हैं जब हम मसीह खुदावंद को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल करते हैं, जब हम उसे we receive him as our personal savior, not the savior of the world but the savior of his mind. और अजीजों, हम यहाँ आज सीखते हैं मसीही कौन है? The one
who has been touched by Christ the Son of God. मसीही वो है जिसको मसीह ने छू लिया है। मसीही कौन है? वो नहीं जो मसीही घराने में पैदा हुआ है। मसीही वो है जिसे मसीह खुदावंद ने छू लिया है और जिसकी जिंदगी में मसीह खुदावंद है, और मसीह उस वक्त छूता है जब हमारे अंदर मसीह को पाने की भूख और प्यास और तड़प। और हम ये बात सीखते हैं कि मसीही कौन है? Living under the guidance of the Holy Spirit. मसीह खुदावंद ने उसे छुआ है, उसने अपनी जिंदगी मसीह खुदावंद को दी है और जिंदगी के बाकी लम्हे वो मसीह के साथ गुजार रहा है। किस तरह? मसीह खुदावंद ने पौलुस रसूल को छुआ और पौलुस रसूल क्या कहता है? अब मैं जिंदा न रहा बल्कि मसीह मुझ में जिंदा है। अब मैं जिस्म में जिंदगी गुजारता हूँ खुदा के बेटे पर ईमान लाने के। और हम ये बात सीखते हैं जब रूह कुद्स की बात आती है, living under the guidance of the Holy Spirit, वो कहता हम नहीं जानते दुआ किस तरह करनी है। जब खुदा का रूह मेरी रूह के साथ या हमारी रूह के साथ मिलकर दुआ करता है, फिर हम ऐसी आहें भर भर कर दुआ करते हैं जो हमारी समझ से बाहर। खुदा की पाक रूह की रहनुमाई में और खुदा की पाक रूह की हजूरी में जो है जिंदगी गुजारनी है, वो मसीही है। और वो मसीही वो है जो हर रोज मसीह की शक्ल पर नया बनता चला रहा है। मसीही कौन है? जो हर रोज मसीह की शक्ल पर नया बनता चला जा रहा है। क्या हमें यीशु मसीह के कद के अंदाजे तक पहुंच रहे हैं? हमें कहां पहुंचना है? यहाँ नहीं, मसीह के कद के अंदाजे तक। और मसीह का कद क्या है? जब कद की बात है तो हम इसमें ये बात सीखते हैं कि मसीह की जिंदगी जो है वो क्या है। मुकद्दस पतरस कहता है कि उसने दुख सहकर हमें नमूना दिया है ताकि हम उसके नक्शे कदम पर चलें। जब हम उसके कद की बात करते हैं तो जिस मोहब्बत के साथ उसने जमीन पर जिंदगी गुजारी है, वो मोहब्बत आपकी और मेरी जिंदगी में। और हमें जब मसीह की बात करते हैं जिस सब्र के साथ उसने जमीन पर जिंदगी गुजारी है, हमें उस सब्र के साथ जिंदगी गुजारनी है। लोग क्या कर रहे हैं? मसीह खुदावंद एक भारी शरीर उठाए हुए जा रहे हैं वही कलवरी के मुकाम। लोग क्या कर रहे हैं? लेकिन लोग लाम तान कर रहे हैं, लोग उसके मुंह पर थूक भी रहे हैं। उस पर जो है खुदा के कलाम में ये लिखा है कि लोग जो है उस पर लान तान कर रहे हैं, उसके मुंह पर थूक रहे हैं, उसके मुंह पर तमाचे भी जो है वो मारे गए। वो अपनी भारी शरीर लिए हुए अपने रास्ते पर क्या है चल रहा है। बस खुदा इस पाक ज़ात का शुक्र करता हूँ जिसने मुझे ये शर्त दिया कि मैं उस रास्ते पर अपने कदम रखूं जहाँ मेरा नीचा तेरे वाला अपनी सीट उठा कर जहाँ मुझेगा उसका हाथ होगा। मैं अपने आप इस काबिल नहीं समझता था कि वहाँ में अपना हाथ। और आज लोग जब जाते हैं तो उनके जीवन इज्जत की बात होती है, वहाँ अपना हाथ रखे यहाँ मसीह का। लेकिन हम ये बात सीखते हैं इस इंतहाई कर्तनाक रास्ते में से जब वो गुजर रहा है, अज़ियत है, परेशानी है, दुख है, तो क्या लान तान करने वालों को जवाब देता जा रहा था? नहीं। खुदावंद के कलाम में लिखा है मगर वो खामोश रहा, अपनी ज़बान नहीं खुली। वो कलवरी के मकाम पर पहुंचे जहां उनके हाथों में और उनके पांव में कील ठोकी। और जब मुस्लिम पर थे तो अपनी ज़बान खोली तो कहा हर बात उनको नहीं जानते के क्या करते हैं। हम खुदावंद के कलाम में से आज इस आयत की रोशनी में पैगाम सीखने जा रहे हैं। मुबारक है वो जो रहम दिल है क्योंकि उन पर क्या किया जाएगा? रहम किया जाएगा। मसीह ने सलीब पर भी रहम का जो है वो सबक जो है वो हमें दिया है। उसने कहा बाप इनको माफ कर क्योंकि ये जानते नहीं कि क्या करते हैं। ये है मसीह के कदम तक पहुंचना कि अपने दुख देने वालों को भी क्या कर देना? माफ कर देना।
अजीजों, हम यहाँ खुदावंद के कलाम में से ये बात सीखते हैं और ये चीजें हर रोज हमारी जिंदगी का जो है वो हिस्सा जो है वो होनी चाहिए। और हम खुदावंद के कलाम में से आज ये बात जो है वो सीखने जा रहे हैं कि मसीह खुदावंद की तालीम दे रहा है कि तुमने ये अपनी जिंदगी में करना है। और हम यहाँ आज खुदा के कलाम में से सीखते हैं, मसीह खुदावंद ने यहाँ पर कहा मुबारक है वो जो रहम देते हैं कि उन पर रहम किया जाए। और हम जब खुदा के रहम की बात करते हैं, रहम इज ए डिवाइन एट्रीब्यूट। रहम जो है ये क्या है? इलाही सिफ्त है। मैंने कहा इट्स डिवाइन एट्रीब्यूट, ये अल्लाह ही सिफ्त है। खुदा की 5 ज़ात में ये मुआफ करने की ताकत है। और हम ये बात यहाँ पर सीखते हैं that what is a mercy? फिर मर्सी है क्या? रहम है क्या? The quality of mercy is not sustained। ये किसने कहा है? शेक्सपियर ने, बहुत बड़ा नावल निगार, ड्रामा लिखने वाला और बहुत बड़ा स्कॉलर समझा जाता था, वो ये कहता है the quality of mercy is not strange, is dropped as the gentle rain from heaven upon the place beneath। कहते हैं ये gentle rain है जो आसमान की बादशाहों से जमीन पर क्या करती है? गिरती है। It is twice blessed। कहते हैं इसमें क्या है? दोहरी बरकत है। The blessed him that gives and him that takes। ये जो रहम करता है उसके लिए भी बरकत का बायस है, और जिस पर रहम किया जा रहा है उसके लिए भी क्या है? बरकत का बायस। शेक्सपियर कहता है this mightiest in the mightiest it becomes the throne monarch better than his crown। कहता है ये दोनों बरकत है, और दोनों क्या बन जाते हैं? माइटीस्ट में कोई भी कमजोर नहीं होता। बाद में हम ये सीखते हैं कि जो रहम करने वाला है वो बहुत बड़ा है, जिस पर रहम कर रहा है वो क्या है? कमजोर है। कहते हैं वो दोनों जो है ये तो दोहरी बरकत है। बरकत जो है रहम जिस पर किया गया है और जिसने रहम किया है वो दोनों जो है क्या है? माइटीस्ट है। और लिखा है वो इस हकीकत को बयान करता है शेक्सपियर ने जब मर्सी की ये तशरीह की है या उसकी तारीफ उसने बयान की है, he covered some of his qualities like impartiality, gentleness and abundance, but we do remember this is not the full definition। ये उसकी full definition नहीं है, उसने चंद हिस्से जरूर जो है वो कवर किए हैं। impartiality, इसमें क्या है? रू रियायत नहीं है। इसमें क्या है? ये जेंटलनेस है, और फिर अबंडेंस यानी ये बहुतायत है। लेकिन हम फुल डेफिनेशन जो है वो कहाँ पढ़ते हैं? The complete definition is found in the word of the God, the Bible। बाइबल मुकद्दस में हमें इसकी जो है ब्रॉडर पिक्चर जो है वो नजर आती है, या इसकी तशरीह जो है वो हमें नजर आती है। और अगर इसका मैं जवाब आपको दूं, then I have very simple answer, because mercy is a divine attribute, therefore only word of God can give us appropriate definition। क्योंकि खुदा का कलाम जो है ये क्या है? डिवाइन है, मर्सी भी डिवाइन एट्रीब्यूट है, तो खुदा का कलाम ही हमें बता सकता है। दुनिया की और कोई किताब है, दुनिया का कोई और इल्म हमें सिखा नहीं सकता कि मर्सी जो है वो क्या है। हम बाइबल मुकद्दस में 2 लफ्ज जो है वो बहुत सुनते हैं नए हतामे में। एक है ग्रेस और दूसरा है मर्सी। ग्रेस का मतलब क्या है? ग्रेस मीन लव ऑफ गॉड, यानी खुदा की मोहब्बत। जब हम ग्रेस ऑफ गॉड की बात करते हैं तो मसीह का फजल हम पर हुआ है। और फजल क्यों हुआ है? इसलिए कि खुदा हमसे क्या करता था? मोहब्बत करता है। और बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि खुदा ने दुनिया से, जहान से प्यार किया, और उसका प्यार क्या था? उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई इस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। ये उसका फजल था।
और जब हम मर्सी की बात करते हैं, मर्सी इज आल्सो लव ऑफ गॉड, बट इट इज लव इन एक्शन। मर्सी जो क्या है? God's love in action। खुदा की मोहब्बत जो है उसका एक्शन हो रहा है, और एक्शन क्या है कि उसका बेटा सलीब पर गुनहगार इंसान के लिए अपनी जान कुर्बान कर रहा है, जो है वो कुर्बान कर रहा है। और उस रसूल कहता है, बस आओ हम ईद करें, क्योंकि हमारा भी फंसा यानी मसीह क्या हुआ है? कुर्बान हुआ है। जब हम ग्रेस और मर्सी की बात करते हैं तो हम ये बात सीखते हैं कि mercy is love that reaching out to those who are helpless and those who are in need of salvation। mercy जो है ये खुदा की मोहब्बत in action है, और ये उन तक पहुंचती है जो helpless है। मैं और आप helpless थे। बाइबल मुकद्दस में लिखा है, कोई शख्स अपनी ताकत और अपनी कुव्वत और अपनी अच्छाई से निजात नहीं पा सकता। We were helpless and we are helpless। और फिर लिखा है कि helpless and those are in need of salvation। तो सबको निजात की क्या है? जरूरत है। और जब खुदा की मोहब्बत का एक्शन होता है तो खुदा की मोहब्बत का एक्शन ये है कि वो हमारे गुनाहों को क्या करता है? धो देता है। बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि वो आप हमारे गुनाहों को अपने बदन पर लिए हुए सलीब पर चढ़ गया, और उसके मार खाने से हमने शिफा पाई। रसूल कहता है उसने हमारे गुनाहों की एक लंबी दस्तावेज को लेकर सलीब पर कीलों के साथ क्या कर दिया है? चढ़ गया। जब हम ग्रेस और मर्सी की बात करते हैं, हम फज़ल और रहम की बात करते हैं, तो एक बात हमेशा याद रखें कि ग्रेस क्या है, फज़ल क्या है, कि जिस चीज के हम हकदार थे, क्या हम हकदार थे निजात के? नहीं, जिस चीज के हम हकदार नहीं थे वो खुदा ने हमें दी है। हम निजात के हकदार नहीं थे, उसने हमें निजात पाने वाले जो है वो क्या कर दिया है? बना दिया है। जब हम मर्सी की बात करते हैं वो ये है कि जिस चीज के हम हकदार थे वो उसने हमें नहीं दी। हम किस चीज के हकदार थे? हम मौत के हकदार थे, लेकिन उसने हमें मौत नहीं दी। फजल ये है कि जिस चीज को हम डिजर्व नहीं करते थे वो उसने दी है, और जिस चीज को हम जिसको हम डिजर्व करते थे वो उसने हमें नहीं दी। ये क्या है? रहम है, ये उसकी ये मर्सी है। और अजीजों, हम ये बात सीखते हैं कि खुदा की मोहब्बत का एक्शन आप कहां देखते हैं? कहां हम मसीह की मोहब्बत का एक्शन देखते हैं? अगर मैं ये आपसे सवाल करूं, जब वो हमारे गुनाहों को माफ करता है, जब वो हमारे गुनाहों को माफ करता है, जब खुदा का बेटा सलीब पर लटका हुआ था, वहां हमें खुदा की मोहब्बत का एक्शन क्या आता है? नजर आता है। इसीलिए पौलुस रसूल कहता है कि उसने अपने बेटे से भी दरेर ना किया। वो थी खुदा की मोहब्बत का एक्शन हो रहा है कि मसीह सलीब पर क्या हो रहा है? कुर्बान हो रहा है। उसका खून जो है वो बह रहा है, और जिसका खून बह रहा है वो कह रहा है इनको माफ कर दे, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। चंद रोज पहले मैं फेसबुक पे जो एक क्लिप जो है वो सुन रहा था, तो एक शख्स ने कहा कि अगर हम आसिया बीबी को छोड़ देंगे, उसे माफ कर देंगे, तो कोई क़यामत नहीं आ जाएगी। उसने कहा कि जब वो कह रही है कि मैंने ये नहीं किया और ये माफी मांग रही है, तो हम इसको क्यों नहीं माफ कर देते? अगर इसको छोड़ देती तो क्या कर लेगी? ये औरत जो है ये क्या कर लेगी जिस वक्त मसलूम बनी हुई है? तो दूसरी तरफ एक शरअ का आलम, क्योंकि बाइबल मुकद्दस में भी शरअ के आलम का जिक्र आता है, वो कहते हैं हम इसे माफ नहीं कर सकते। जब हम बाइबल मुकद्दस को पढ़ते हैं तो बाइबल मुकद्दस में लिखा है अदालत करना हमारा काम नहीं, अदालत करना खुदा का काम है, इंतकाम लेना हमारा काम नहीं, यह खुदा का काम है। और जब हम इंतकाम लेते हैं, जब हम किसी पर रहम नहीं करते हैं, तो हम पर भी रहम नहीं किया, तो हम पर भी क्या होगा? रहम नहीं होगा। और दूसरी तरफ यह है कि हम खुदा के अहकाम जो है उसकी क्या कर रहे हैं? नाफरमानी। हम खुदा के कलाम में यह बात सीखते हैं, The cross of Jesus Christ, जब हम मसीह खुदावंद की सलीब की बात करते हैं तो हम ये बात सीखते हैं, the act of God's grace in mercy of fallen
sinful man. In other words, we see God's mercy for sinners on the cross. हम सलीब पर खुदा का रहम जो है वो गुनहगारों के लिए क्या करते हैं? And now the fountain of God's grace and mercy is open and flowing, and it's flow freely. इसके लिए हमें कोई कीमत अदा नहीं करनी है। मसीह खुदावंद ने क्या कहा कि जो कोई प्यासा है वो आए और पिए और आबे हयात क्या करे? मुफ्त है। मसीह खुदावंद मुफ्त जो है वो जिंदगी जो है वो देता है। अगर मैं आपके लिए मुकद्दस पौलुस रसूल का खत जो उसने इफिसस की कलीसिया को लिखा है उसके दूसरे बाब में से 4 आयत से 7वीं आयत तक पढ़ूं तो खुदा के बंदे मुकद्दस पौलुस रसूल के अल्फाज यहाँ हमें इस तरह से मिलते हैं। दूसरे बाब की 4 आयत को जब हम देखते हैं तो वहां खुदा के कलाम में लिखा है, मगर खुदा ने अपने रहम की दौलत से उस बड़ी मोहब्बत के सबब से जो उसने हमसे की, जब हम कसूरों के सबब से मुर्दा ही थे तो हमको मसीह के साथ क्या किया है? जिंदा किया है। खुदावंद के कलाम में लिखा, हम गुनहगार थे, हम गुनहगारों पर उसका क्या हुआ है? रहम हुआ है। और यहाँ ये है कि कहना मैंने ये गुनाह नहीं किया, चीख चीख करके कह रहा मैंने ये गुनाह नहीं किया है। लोग जानते हैं कि उस आसिया बीबी ने वो गुनाह नहीं किया, लेकिन उसके बावजूद ये कहा जा रहा है हम इसे मुआफ नहीं कर सकते। मसीह की तालीम और मसीह के शागिर्दों की, रसूलों की तालीम को जब हम देखते हैं तो रसूलों की तालीम हमें ये सिखाती है कि मसीह ने खुदा बाप ने उस वक्त हम पर रहम किया है जब रसूलों के सबब से मुर्दा ही थे, तो हमको मसीह के साथ उसने जिंदा किया है। उसने मौत नहीं बल्कि हमें जिंदगी, तुमको फजल ही से निजात मिली है और मसीह यीशु में शामिल करके उसके साथ जलाया और आसमानी मुकामों पर उसके साथ बिठाया, ताकि वो अपनी उस मेहरबानी से जो मसीह यीशु में हम पर है आने वाले जमानों में अपने फजल की बेनहायत दौलत क्या करे? दिखाए। न सिर्फ मुआफ किया है बल्कि लिखा है कि उसने हमें आसमानी मुकामों पर क्या किया है? बिठाया है। ये है मसीह की तालीम और ये है बाइबल मुकद्दस की तालीम। ये है मसीह के कद के अंदाजे तक जाना कि उनको मुआफ कर देना, इंतकाम ना लेना। और पौलुस रसूल जो है वो कहता है इंतकाम लेना हमारा काम नहीं है। वहां पर लिखा है खुदावंद के कलाम में पौलुस रसूल रोमियो के खत के 12वें बाब में कहता है कि बदी पर बदी से गालिब, बदी पर किससे आओ? नेकी से जो है वो गालिब आओ। और हम यहाँ खुदावंद के पाक कलाम में से इस हकीकत को अपने लिए सीखते हैं। मसीह खुदावंद ने कहा The blessed are the merciful, for they shall receive mercy. मसीह खुदावंद का मुबारक है वो जो रहम दिल हैं क्योंकि उन पर क्या किया जाएगा? रहम किया जाएगा। और इसी को हम यहाँ खुदावंद के कलाम में ये बात जो है वो अपने लिए सीखते हैं कि आपकी और मेरी और आपकी रिस्पांसिबिलिटी क्या है। मसीह खुदा ने सिखाया कि मुबारक वो है जो रहम दिल है क्योंकि उन पर क्या किया जाएगा? रहम किया जाएगा। जो किसी पर तरस खाता है उस पर क्या किया जाएगा? तरस जो है वो खाया जाएगा। और हम यहाँ खुदावंद के कलाम में आज ये बात जो है वो अपने लिए जो है सीखते हैं। Having received His mercy, we then share His mercy with others. Ward W.B. अपनी कमेंटरी में ये जो है अल्फाज जो है वो लिखता है, वो कहता है कि जब हम पर रहम हो गया है ना तो हम दूसरों पर भी क्या करें? रहम करें। लेकिन हम कहते हैं हम पर रहम हो गया, हमने किसी पर रहम नहीं किया। हम रहम की तलाश में रहते हैं लेकिन हम रहम करना नहीं चाहते हैं। अजीजों, हम यहाँ आज ये बात सीखते हैं कि अब मेरी और आपकी जो है वो रिस्पांसिबिलिटी क्या है, हमें क्या करना चाहिए। लिखा तो ये है कि मुबारक वो है जो रहम दिल है क्योंकि उन पर क्या किया जाएगा? रहम जो है वो किया जाएगा। और जब हम जो है वो रहम करते हैं तो फिर क्या होता है? For what Jesus actually was saying that we have to show mercy because we have received mercy, or
confident we will continue to receive it. हमें क्या confident होना चाहिए, confidence होना चाहिए कि ये हमें क्या होगी, मिलती है। और अगर हम किसी पर रहम नहीं करते तो इसका मतलब ये है खुदा के रहम को कबूल नहीं किया। और हम खुदावंद के कलाम में से सीखते हैं कि ये इसलिए हम जो है क्यों कहा गया मसीह खुदावंद ने कि मुबारक है जो रहम दिल है, क्योंकि कंटिन्यूसली उन पर रहम जो है वो क्या होगा, होता रहेगा, रहम उनके लिए जारी है। और हम यहाँ खुदावंद के कलाम मत्ती की इंजील उसका 18वां बाब और उसकी 21वीं आयत से 35वीं आयत तक आप अपने लिए पढ़ रहे थे, जब मसीह खुदावंद का एक रसूल मुकद्दस पतरस मसीह खुदावंद के पास आता है और आकर कहता है कि आए खुदावंद, आए उस्ताद, आए रबी, अगर मेरा भाई गुनाह करता ही चला जा रहा है तो मैं कितनी बार उसे मुआफ करूं? क्या मैं 7 बार उसे मुआफ करूं? मसीह खुदावंद ने कहा 7 बार नहीं बल्कि 7 के 70 बार। फिर मसीह ने एक तमसील सुनाई, कह लगे कि जो है मालिक हिसाब लेना चाहता है, नौकरों से हिसाब ले रहा है। एक मालिक जो है उसने कितने देने हैं, 10,000 दिनार उसने देने हैं। और जब नौकर उसके पास आता, मालिक कहता है तू मेरा कर्ज क्यों नहीं दे रहा? और उसने मालिक ने ये कहा कि इसके बीवी बच्चों को कैद में रखो जब तक ये कोड़ी कोड़ी अदा न करे। लेकिन उसके कदमों में गिर कहने लगा मुझे मुआफ कर दे, मैं कर्ज अदा कर दूंगा। लेकिन उसने उस पर तरस खा कर उसको छोड़ दिया और उसने कहा जा तेरा कर्ज जो है मैंने क्या कर दिया है, बख्श दिया है, मुआफ कर दिया है। बाहर निकला, एक शख्स से कहते हैं 100 दिनार, कहां 10,000, कहां 100 दिनार। देखो उस गरीब था 100 दिनार। और देखा कि उसकी बीवी बच्चों को लेकर उसने क्या कर दिया है, कैद में डाल दिया है। मसीह खुदावंद के ने कहा कि लोग जो है उन्होंने आकर बताया अपने मालिक को कि तूने क्या किया है, ये इसने जो है वो क्या किया है। उसने कहा इसे वापस लाओ। और देखा उसने कहा इसको कब क्या करो, इसको कैद में डाल। कहा क्या कि मैंने तुम पर रहम किया था, मैंने तुझ पर तरस खाया था, मैंने तुझे बख्श दिया, तुझ पर भी लाज़िम था कि तू इसको क्या करता, बख्श। अजीजों, हम मसीह खुदावंद के अल्फाज को देखते हैं मत्ती की इंजील में, मत्ती की इंजील के 18वें बाब, मत्ती की इंजील के 18वें बाब की आखिरी आयत 35वीं आयत में लिखा है मेरा आसमानी बाप भी तुम्हारे साथ इसी तरह करेगा कि अगर तुम में से हर एक अपने भाई को दिल से मुआफ ना करेगा, दिल से मुआफ ना करेगा, कभी-कभी से तो मुआफ करेगा। जब आज पता सी कि और बंदे सारे के अंदर से मैंने कहा चलो जी मैं माफ कर दूं, लेकिन मैंने उसे दिल से माफ नहीं किया है। अगर हम दिल से माफ नहीं करते, देखा खुदा बाप जो आसमान पर बैठा हुआ है वो भी हमें क्या करेगा, माफ नहीं करेगा। और जब हम मुबारक बातों की बात करते हैं, जहां उसी खुदावंद ये कह रहे हैं कि मुबारक है वो दिल है क्योंकि उन पर क्या किया जाएगा, हम किया जाएगा। उसी खुदावंद के अल्फाज यहाँ पर इस तरह से मुबारक है वो दिल है क्योंकि उन पर रहम किया जाएगा। उन्हीं पर रहम होगा जो किसी पर क्या करते हैं, रहम करते हैं। लेकिन हम फिर एक दूसरे का रास्ता नहीं पाएंगे, नहीं वो ऐसे तरह किया। तो बाइबल मुकद्दस की तशरीह हम अपनी मर्जी से नहीं कर सकते। बाइबल मुकद्दस की तशरीह हम अपनी मर्जी से नहीं कर सकते। और बाइबल मुकद्दस में लिखा है हम एक लफ्ज को इधर से उधर नहीं कर सकते। लिखा क्या है, अगर कोई ऐसा करेगा तो जो इस किताब के अंदर आपके लिखी उस पर क्या होगी। अजीजों, हम खुदावंद के पाक नाम से सीखते हैं। मसीह खुदावंद ने कहा कि मुबारक है वो जो रहमदिल है क्योंकि उन पर रहम किया जाएगा। तो आज मेरे जो आपके लिए सबक है कि हम रहम करें, हम तरस खाने से, और ये हम सीखे करते हैं। मसीह खुदावंद के रास्ते में जाते थे, तरस खाते थे। बीमार है उसको शिफा दे, भूखे हैं उनको जो है वो खाना है। क्या गिरफ्तार को भेज दे, हम कहाँ से लाएंगे रुपये। उन्होंने कहा नहीं तुम इनको खाने को दो। उन्होंने कहा पैसे भी नहीं होंगे देने के रुपये। मेरे पास काम देने को उन्होंने कहा जीसस there is no any there is no fast restaurant, we have to bring the burger from them.
तो आज भी वहाँ कोई नहीं है, यकीन करें, आज भी जहाँ मसीह खुदावन ने उन हजारों की तादाद में लोगों को खाना खिलाया, आज भी वहाँ कोई रेस्टोरेंट नहीं है, चर्च है वहाँ पर, लेकिन कोई दूर तक का उस तरह का रेस्टोरेंट नहीं, जहाँ हजारों की तादाद में लोग जो है क्या करें, खाना खा सकें। इसी प्रकार तुम भी उनको खाने को दो। मसीह खुदावन क्या कि निर्मा के बेटे का जनाजा जो है वो मुस्लिमों के जनाजा 5.5 साल में जनाजा नहीं होता। इसी प्रकार ने क्या कहा, इस जनाजे को क्या करो, रोको। इसी खुदावन ने उस बेवा के बच्चे को जिंदा किया, उसके क्या कर दिया, मसीह खुदावन सिर्फ पर भी अपना काम हमने पूरा किया है, लिखा है। कर्ज खाने की बात, मसीह के साथ 2 डाकू, एक दाएं और एक बाएं स्लीपर दिए गए। एक लाल तन कर रहा है और दूसरे ने कहा तू उसको क्यों लाल तन कर रहा है, वो पाक है, रास्तबाज है, हम तो गुनहगार हैं, हम अपने किए का बदला जो है वो पा रहे हैं। और मसीह की तरफ रुक करके उसने कहा जब तू अपनी बादशाही में आए तो मुझे याद करना। तो मसीह ने क्या कहा, आज मेरे अजीजों, हम उसके मानने वाले हैं जो खुद सलीब पर जिंदगी और मौत जंग लड़ रहा है, लेकिन दूसरों को क्या कर रहा है, कर रहा है, दूसरों के लिए खुदा के कुद्दूस के दरवाजे जो है वो क्या कर रहा है, खोल रहा है। हम खुदा के कलाम से सीखते हैं कि हमें रहम करना सीखना है, क्योंकि हम रहम, अगर हम चाहते हैं कि ये रहम जारी रहे, ये चश्मा बहता रहे, तो फिर क्या करें, रहम करते चले जाए और हम पर क्या हो जाए, रहम खुदा की सलामती आपके साथ। आइए अब अपने सर खुदा के तेरा शुक्र करते हैं, तेरी तारीफ करते हैं, तेरे पाक कलाम के लिए, तेरे पाक कलाम की सच्चाई के लिए, तेरे बेटे खुदा की, और आज इस पैगाम के लिए तूने हमें दिया है कि हम मुबारक उस वक्त होंगे जब हम रहम करना सीख लेंगे। अगर हम रहम नहीं करेंगे तो हम कब रहम करेंगे। ये कलाम आप अपने दिल में रखें और हम तेरी मर्जी को पूरा करें। प्यारे और चुराई नाम में आमीन।